morning everyone. I am Dr. Kirti Puri Arora. I am from Mohandai Oswal Hospital. I am head of the department Internal Medicine and I treat diabetes as well. Today my aim to come with you is just to create awareness on this World Malaria Day. So every year we celebrate World Malaria Day on 25th of April. This time the theme is beautiful. It is wonderful because they keep changing the themes just to motivate us and encourage all the healthcare professionals across the globe. This year the theme is Malaria Ends With Us. Reinvest, reimagine and reignite. Just to simplify, so reinvest, we are just channelizing the sources, the financial sources, just to streamline all the powerful tools which can just help us bring this malaria to an end. So all the government funding or at public level or at the private level, they want to channelize the financial resources. Then imagine this is the new innovation strategies, some new ideas, some collaborations and new diagnostic tools that also helps us combating a new disease or already existing old disease. Then third is reignite. So this, as the name indicates, as the term indicates, it is re-energizing. So it is re-energizing globally, also at the community level. Again with collaborations, with new strategies, with new government policies. So altogether, good surveillance, data-driven, evidence-based approach, new treatment strategies, new innovations, channelizing the financial resources or the human resources, everything put together in a one thread can help us fight against this disease, which sounds very simple, but it is a dreadful disease. So now I begin with the whole idea of creating this awareness to the general public. So malaria, WHO has already declared, is a life-threatening disease. It is mostly prevalent in tropical countries like ours, India, and I must highlight here, it varies from mild symptoms, a simple malaria, to a very, very dreadful, fatal and complicated malaria. So in our vernacular or colloquial language, I would tell people, a common public, कि ये simple आम मलेरिया, एक मच्छर काटने की बीमारी, एक बुखार से लेके हमारी मौत तक ये आ सकती है. सो इसको हम बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं समझ सकते हैं. अगर इसका इलाज ठीक टाइम पे नहीं हो रहा और ये डिटेक्ट ठीक टाइम पे नहीं हुई है तो ये बढ़कर आगे कॉम्प्लिकेट होकर जानलेवा भी बन सकती है. सो दैट इज़ हाउ स्केरी दिस मलेरिया कैन बिकम इफ इट इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में मुझे लगता है नॉट जस्ट मलेरिया, ज़्यादातर बीमारियों में ये है जब लोग इग्नोरेंट होके, कैजुअल होके, सिंपल उसको बीमारियों को सिंपल और एक आम अप्रोच देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, खांसी जुकाम ही तो है, सिरदर्दी तो हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, वायरल होगा. वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं और ओवर द काउंटर मेडिकेशन जाके कुछ भी मलेरिया की दवाई दे दो, कोई नींद दे दो, ये दे दो, पुराने उनके दिमाग में जो आता है वो सिंपल इलाज करना केमिस्ट से जाके खरीद लेते हैं. पर उनको ये नहीं पता कि अगर ऐसी बीमारी मलेरिया जो डिफरेंट टाइप्स का है, इट इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, और मलेरिया भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वाइवेक्स, फैल्सीपेरम, और आपको पता है जब टाइप्स हैं तो मतलब ट्रीटमेंट भी अलग अलग है. तो ये तो हो नहीं सकता कि एक ही दवाई देके सारे तरह के मलेरिया मर जाएं. सो हर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, गाइडलाइंस हैं, हर तरह का मलेरिया का ट्रीटमेंट एक डिफरेंट मॉलिक्यूल से मरता है, मतलब एक डिफरेंट ड्रग होती है और उसका फिक्स डोज रेजिमेंट है. उसको हम ओवर द काउंटर दुकान से जाके या किसी आम बंदे से दवाई नहीं ले सकते. लेंगे तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. इसके सिम्टम हमें थोड़े वॉच आउट करने चाहिए. हमें अगर लगता है कि हमारा शरीर दर्द हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, सर दर्द हो रहा है पीछे की तरफ, या हमें रेट्रो ऑर्बिटल पेन जो हम डेंगू में भी कहते होते हैं, सर दर्द बहुत ज़्यादा बिना मतलब के होना, बुखार ज़्यादा या कम चढ़ना, वैसे तो मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर होता है, और कंपन के साथ बुखार चढ़ना, राइगर्स जिसको बोलते हैं, वो मलेरिया के सिम्टम होते हैं. मैं एडवाइस करूंगी कि आप सब अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाके कम से कम एक बार उनसे चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि इसका कंफर्म्ड डायग्नोसिस तो टेस्ट से ही पता चलेगा. आजकल बहुत एडवांस टेस्ट हैं और वो 2 मिनट में टेस्ट से हमें मलेरिया का एक तो उसका टाइप पता चल जाता है, उसकी फिक्स डोज रेजिमेंट शुरू हो जाती है और पूरा अच्छे से इलाज जड़ से ही वो निकल जाता है. बट ये छोटे, मैंने बोला आपको सिंपल बीमारी से इट कैन गो इनटू अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड
ड्रेडफुल डिजीज जिसको हम कहते हैं सिर पे बुखार चढ़ गया। सो मलेरिया कई बार हमने देखा है पेशेंट सीधा सिर पे बुखार वाले आते हैं जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, और वो जानलेवा है, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इट समटाइम्स प्रेजेंट एज लिवर फेलियर। सो लिवर के एंजाइम्स, पीलिया के साथ पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार चढ़ा था और पीलिया हो गया, और निकलता क्या है, मलेरिया। फिर ये सेल डाउन कर देता है, जैसे डेंगू में सेल बोलते हैं, प्लेटलेट्स, वो डाउन हो जाते हैं। नो डाउट कि डेंगू में थोड़े से प्लेटलेट बहुत रैपिडली और एग्रेसिवली डाउन होते हैं, इसके होते हैं पर उतने एग्रेसिव नहीं होते, पर इसके भी सेल डाउन होते हैं। सो हम कहीं घर बैठे ये ना सोचते रहें कि ये डेंगू ही है, ठीक हो जाएगा, मैं कीवी खाऊंगा, मैं ये फल खाऊंगा, अपने आप सेल बढ़ जाएंगे। वो मलेरिया के भी सिम्टम कंफ्यूजिंग उसके साथ हो सकते हैं। सो सेरिब्रल मलेरिया से बचने के लिए कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जिसमें किडनी फेलियर के साथ भी आप आ सकते हो। सो किडनी, लिवर, ब्रेन सब पे ये इफेक्ट करता है। सो इसको बहुत सिंपल बीमारी नहीं समझना चाहिए। अगर आपको कंपन के साथ बुखार चढ़ता है, शरीर में दर्दें रह रही हैं और बुखार हाई ग्रेड है और बीच बीच में नहीं हो रहा और फिर हो रहा है, इंटरमिटेंट फीवर, थोड़ा सा फीवर फ्री पीरियड भी होता है और फिर एकदम से बुखार तेज आना शुरू हो जाता है, आप प्लीज अपने नियर बाय डॉक्टर को मिलिए और उसका प्रॉपर मतलब जड़ से निकालने का ट्रीटमेंट, फिक्स डोज रेजिमेन गाइडलाइंस के हिसाब से उसका इलाज करवाइए। बिकॉज इट इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, इट इज क्योरेबल डिजीज, ये ऐसा नहीं है। सो एंड वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड we can all fight against this malaria as a team. Surveillance, data-driven approach, new strategies, and to fight against climate change as well. That is also a big challenge which has inhibited us from the rising numbers. But fortunately, and the good news is that the numbers of malaria has decreased. So our government at both levels, at every level, community, global, it is been fighting with malaria, and what I remember is we had around 263 million people suffering from malaria globally, and now it is decreasing. In 2017 there were about 6 million and it has come down to 2 million. I mean the deaths, the prevalence rates, and of course the 6 lakh deaths, and children under 5 years of age dying of malaria is also coming down. So if we go on with proper strategic plans with the fight, like I said, the theme of reinvesting and reimagining, innovating and reshaping with reignition, with re-energies, and all motivated to fight against this climatic change, which is a challenge to fight such tropical fevers. I think very soon we will be eradicated, specifically country like India, which is doing a great work in eradication of these non-communicable diseases. So thank you very much, and I wish you a good healthy life on this World Malaria Day. Thank you.